Good morning, students. How are you? In my previous talk, I have taught you about the definitions of globe, latitudes, longitudes, and through Google Classroom, I have assigned work to draw the model of colorful picture of globe, and I have also given assignment to define longitude and latitudes. I hope you have completed it and you will send it through your mobile to the Google Classroom. You are doing very well. Your home assignment is very much complete, and you are very good students following the instructions of the social science teacher and others. Let us proceed further. Today we will learn various heat zone of the earth and how the heat zones are differ. What are the reason behind it? My dear students, yesterday we have learned what is globe. So globe is a true model of earth. It may be different size, it can be large, it can be small, it can be of globe type, and in that sequence we have learned the parallels of latitudes, uh, equator. Okay, we have learned the equator. Quickly let us revise. The equator is an imaginary line which runs across the globe and it divides the earth into two equal parts. The northern part of equator is known as northern hemisphere, the southern part of equator is known as southern hemisphere. We have also learned the value of equator is 0 degree and the value of north pole is 90 degree, south pole is 90 degree. So today we are going to learn the different heat zones on the earth. Very interesting topic, and I hope you will take interest in understanding these things. Here are some important parallels of latitudes. Before going to learn heat zones, we must be able to know important parallels of latitudes. Latitudes को हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं. तो जो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं. उसके बाद चलते हैं कि उन अक्षांश रेखाओं का भारत के जो हमारे ग्लोब है उसके ऊपर किस तरह से हीट का प्रभाव होता है. कहीं पर ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत सर्दी है, कहीं पर मॉडरेट टेम्परेचर है. तो इसका क्या कारण है? व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट? बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाओं का मतलब लैटिट्यूड्स. सो बिसाइड्स द इक्वेटर 0 degree, I have told you earlier, the north pole 90 degree north and the south pole 90 degree south. हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल की वैल्यू 90 डिग्री क्यों रखा गया है? क्योंकि जो होल जो सर्किल है इट मेजर्स इन 360 डिग्री, and when we proceed towards the north pole or towards the south pole it reduces to 1/4. That is why its degree is 90 degree. So there are four important parallels of latitudes. Tropic of Cancer 23 degree north in northern hemisphere. यानी आप इक्वेटर जो बीचों बीच जा रहा है, इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, उसके ऊपर जो 23 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है, यानी हम इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर अगर हम बढ़ते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और 23 डिग्री नीचे अगर हम आते हैं, इक्वेटर से साउथ की तरफ आते हैं, उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा हिंदी में कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा. थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी और एग्जाम में भी ऐसा पूछा सकता है कर्क रेखा से आप क्या समझते हैं. तो सिंपल आपका बड़ा साधारण आंसर होना चाहिए कि
भूमध्य रेखा के ऊपर जो 23 डिग्री तक हम नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते हैं तो 23 डिग्री का जो एरिया है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ में है। देन आर्कटिक सर्किल एट 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर हम 66 डिग्री पर जो लाइन खींची है लैटिट्यूड्स का, वो है आर्कटिक सर्किल, और अंटार्कटिक सर्किल है 66 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर के नीचे 66 डिग्री आते हैं तो आपका हो जाता है वो साउथ ऑफ इक्वेटर, उसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, जो न्यू टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, इसको आपको थोड़ा याद करना है, इसको समझना है। इसके डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी डिग्री पर सिचुएटेड हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल के आती है कि पृथ्वी पर कहीं पर बहुत गर्मी है, कहीं पर बहुत सर्दी है। पोल्स पर आपने देखा होगा बर्फ जमी पड़ी है, दोनों पोल्स पर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों पोल्स बहुत ज़्यादा सर्दी है। क्या कारण है? आपने देखा होगा इक्वेटर के पास बहुत गर्मी पड़ती है। यहाँ तक इक्वेटर के नज़दीक जो भी एरिया है हमारे देश में, मद्रास का एरिया वो काफ़ी गर्म है, चेन्नई का एरिया काफ़ी गर्म है, काफ़ी हीटेड है। उसके पीछे क्या कारण है उसको हम थोड़ा समझेंगे आज। Midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and this area receives maximum heat and is called torrid zones। तो हम सबसे पहले जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसको टॉरिड जोन को हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये टॉरिड जोन है वो कौन सा जोन है, पहले हम इसको जानें। जोन मीन्स एरिया। बहुत गर्मी का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कौन सा है? तो सिंपल सा आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। इट मीन्स इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ ऊपर का एरिया और इक्वेटर से 23 डिग्री नीचे साउथ का एरिया वो टॉरिड जोन कहलाता है। टॉरिड जोन इसलिए कहलाता है कि इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, यहाँ पर जो सन रेज है वो बहुत ही क्या कहें उसे, बहुत ही परपेंडिकुलर पड़ती है, सीधी उसके ऊपर पड़ती है। इसलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है और बहुत गर्म रहता है। तो इसी को हम कहते हैं टॉरिड जोन्स। ओके, क्लियर? नाउ कम ऑन द अनदर टॉपिक। द सन नेवर शाइन्स overhead on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। अगर हम इस टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाएं या इसके नीचे आएं तो वहाँ पर सन की रेज परपेंडिकुलर फॉल नहीं होती, बिल्कुल सीधी नहीं गिरती है। वहाँ पर ये स्लैंट फॉल करती है, थोड़ा स्लैंट होती है, और वहाँ का जो टेम्परेचर है इसलिए वो उतना गर्म नहीं हो पाता है। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन सदर्न हेमिस्फीयर हैज मॉडरेट टेम्परेचर एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। तो जो हम अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की एरिया की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे की एरिया की, यहाँ पर जो सन की रेज है वो बहुत सीधी फॉल नहीं होती है, स्लैंट फॉल होती है, तिरछा पड़ती है। इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। नेक्स्ट पॉइंट, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल
in northern hemisphere and the Arctic Circle and South Pole in southern hemisphere is very cold. अब जो तीसरी बात निकल करके आ रही है, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, इस दोनों के बीच का जो एरिया है, और इधर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है वो बहुत ही कोल्ड है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि जो सन की रेज है वो हॉरिजॉन से ऊपर जा नहीं पाती है, बहुत स्लैंट हो जाती है, वहाँ पर सीधी फॉल नहीं कर पाती, बहुत स्लैंट हो जाती है। Therefore its rays always slanting and provides less heat. इतनी स्लैंट हो जाती है, इतनी तिरछी पड़ती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। Therefore these areas are called frigid zones, very cold. So हम तीन बातों को देखे भी यहाँ पर। एक तो हमने देखा टॉरिड जोन्स। टॉरिड जोन्स कौन सा है? इक्वेटर के 23 डिग्री ऊपर जो नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के 23 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है, इस पर हर लैटीट्यूड्स पर, हर अक्षांश रेखा पर सूरज की किरण, सूरज की रेज वर्टिकल फॉल होती है, सीधी गिरती है, जिससे यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और इसलिए इसका नाम रख दिया गया टॉरिड जोन्स। और इसके ऊपर हम चलें तो सन की रेज थोड़ी, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो सन की रेज थोड़ी स्लैंट पड़ने लगती है, थोड़ी तिरछी पड़ने लगती है। और ये जो एरिया है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्दी। तो इस एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। तो जो आर्कटिक सर्किल हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इधर आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत कोल्ड होता है, इसलिए इस एरिए को फ्रिगिड जोन्स कहते हैं, वेरी कोल्ड जोन है। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। गूगल क्लासरूम में जो आपका कमेंट का कॉलम है, वहाँ आप इस वीडियो को देख करके लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका डाउट्स क्लियर कर सकूं और अच्छी तरह से समझा सकूं कहाँ आपकी परेशानी है। थैंक यू वेरी मच।